Describe the events that led up to Prophet's migration to Medina. Of course, the Hijrah, right? What do you think is going to be there? Is it going to be the events which took place in cave of Thor? Assalamu alaikum. So, walaikum salam. So, is it related to the events which took place in cave of Thor, Masjid Quba, and all of these things, or something else is going to be there? Yes. Good. ठीक है. अच्छा कोई अच्छा ऑनलाइन में अगर म्यूट कर लें माइक या anyone else? The question is. क्वेश्चन सामने आई होप नजर आ रहा होगा. डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन. क्या इस क्वेश्चन में हम केव ऑफ थॉर का इवेंट लिखेंगे? नो वेरी गुड. वी विल नॉट राइट. क्यों? रीजन क्या है? रीजंस ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन. एक्सीलेंट. दिस क्वेश्चन इज प्योरली अबाउट रीजंस फॉर माइग्रेशन. ये जिस साल क्वेश्चन आया था, मुझे अभी ईयर याद नहीं है, ये एक दफा आया अभी तक कैम्ब्रिज में. स्टूडेंट जैसे वर्ड देखते हैं ना, इवेंट्स of migration, they start writing on the events of migration. This question does not need events of migration. What you are going to write in this answer, I will show you the outline. We are moving to the outline of that question. लेकिन आपने पहले exactly अब आपने persecution opposition का word use किया. Now look at the question. This is the question. I already wrote it is causes of migration या reasons of migration. आपने इसमें इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन नहीं लिखने. अब व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द आंसर, पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दिखाता हूँ. आई ट्राई टू मेक एन आउटलाइन ऑफ द आंसर ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए. Causes of migration don't start directly from the immediate. If they say immediate reason, then immediate. This is a general question. Events that led up to migration. Your name, sorry? अयान ने शुरू में कहा कि persecution opposition आएगा. Yes, but we will not go in detail of that. आपने एक पैराग्राफ बनाना है, long term causes persecution opposition. You can see I have summed it up in just 3-4 lines. I talked about Hazrat Bilal, Hazrat Khubab, Hazrat Ammar, but don't go in the whole note of persecution opposition. You will stick your answer to only this part. Is it clear? अच्छा, moving on to the second. अब देखें persecution opposition से आप कैम्ब्रिज कहते हैं स्टूडेंट के आंसर के अंदर क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टेप वाइज चीजें आगे जाती जानी चाहिए. यू स्पोक अबाउट परसिक्यूशन ऑपोजिशन. अब आपने उसको लिंक किससे करना है? पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू, फ्यू पीपल वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू एबिसिनिया. आपके आंसर में माइग्रेशन टू एबिसिनिया आ गया. डू यू थिंक माइग्रेशन टू एबिसिनिया हैज समथिंग टू डू विद माइग्रेशन टू मदीना? कैसे? गुड. कैन यू सी दैट? The experience of migration to Abyssinia was successful, and it gave a hint that migration is the solution to the problem. So can you see the linkage of the previous discussion with the next one? Of migration to Abyssinia, इसकी वजह से क्या हुआ? Quraysh got angry. What did they do then? They boycotted the Holy Prophet ﷺ's whole tribe, right? Social boycott. ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानना, and you will connect social boycott के end पे क्या हुआ था? Prophet ﷺ lost 2 of his family members. Who were they? Hazrat Abu Talib and Hazrat Khadija. Perfect. अब देखें लिंकेज बन रहा है. Their death led to what? Loss of tribal protection. आपके आंसर में एक सीक्वेंस चल रहा है. इसको हम कोहेजन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं. सीक्वेंस आंसर आपका चल रहा है. अगर आप पहले ये लिख दें डेथ ऑफ अंकल एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, फिर आपको बाद में टॉर्चर याद आता है, फिर आप अबिसिनिया. आंसर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड. आपके मार्क्स लेवल 4 पे नहीं जाते. कई स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर मेरे आंसर में ऐसी कौन सी चीज है व्हिच आई हैव मिस्ड आउट. एक्चुअली यू हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग. You have covered everything in your answer. Even you will be unable to get above 7 because of certain reasons. उसमें से पहला main reason यही है, आंसर आपका structured नहीं होगा, cohesion आपस में connection नहीं है. Like I told you, there is a connection between each paragraph, each जो हम transition कर रहे हैं, आपको यहाँ पे connection मिल रहा है. Answer is not done yet. अब असल आंसर की तरफ हम आ रहे हैं. अब ट्राइबल प्रोटेक्शन का लॉस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का led to what? It led to next step. और वो जो next step था, that is, अच्छा मूसा, you are raising the hand. Sorry, yes, you have a question. सर आपने कहा कि अगर स्ट्रक्चर गलत हो तो फिर लेवल 4 नहीं बनता. कैम्ब्रिज का जो लेवल 4 की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं आपको मुझे याद पड़ता, आपने मुझे बताना भी है. और मार्किंग स्कीम में लेवल जब आप चेक करते हैं, लेवल 4 के अंदर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि आंसर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रक्चर्ड, कोहेजन शुड बी देयर, एक्सटेंसिव डिटेल शुड बी देयर. आखिर में कहते हैं यू मे कोट अ रेफरेंस or not, depending on the question. हमारा फोकस किस पे होता है? सर अगर जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सही लिखे हो, आंसर भी बिल्कुल सही हो, लेकिन ऑर्डर गलत हो जाए
तो आंसर पे आपके इम्पैक्ट करेगा। अगर आप लेवल 4 पे पहुंच भी जाते हैं तो टीचर आपको लेवल 4 का हाईएस्ट रैंक नहीं देगा, आपको L4 लिख के 8 देगा, 8 से आगे नहीं देगा मार्क्स। ओके सर। ठीक है। और हो सकता है कुछ टीचर स्कूल में कभी कभी ना इंकरेज करने के लिए, क्योंकि पूरी क्लास में एक ही बेस्ट आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैम्ब्रिज मार्किंग एक्चुअली, कैम्ब्रिज वैसे 8 से ऊपर नहीं देता, लेकिन हो सकता है उस एग्जामिनर के नजदीक कोई कनेक्शन स्ट्रक्चर उसको लग रहा हो। जैसे हम कभी सोचते हैं ना कि आई हैव मेड स्ट्रक्चर्ड आंसर, बट उस स्ट्रक्चर्ड को कोई और टीचर कह सकता है दैट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली चीजें स्ट्रक्चर नहीं है। दैट इज क्रोनोलॉजी एक्चुअली व्हिच यू नीड टू फॉलो, कि एक सीक्वेंस में चीज चलनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। अब आप ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉस्ट ट्राइबल प्रोटेक्शन। तो प्रॉफिट ने क्या किया? ही वेंट टू ताइफ। डिड इट वर्क? नो, you have to return back. Who provided tribal protection to Holy Prophet? We discussed Mu'tam bin Adi. ये आपके आंसर में, अब देखें आपके आंसर में बैकग्राउंड चल रहा है, इसको इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर आप इसको फर्दर डिटेल में जाएंगे, आप अपने आंसर के कोर पार्ट से हट जाएंगे। तो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट? प्लेजेस ऑफ अकाबा। ताइफ से वापस आए, मु'तम बिन अदी gave tribal protection. Pledges of Aqaba is the core part. If someone misses few of the above points, suppose आपको माइग्रेशन टू अबिसिनिया का कनेक्शन मिस हो गया, नो प्रॉब्लम। आपका आंसर अगर सीक्वेंस में निकल गया है किसी तरह स्ट्रक्चर्ड, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने इस आंसर में प्लेजेस ऑफ अकाबा मिस कर दिया, you will not get highest level of level 3 even. आपको 5 मैक्सिमम मिलेंगे अगर आपने सब कुछ लिखा है लेकिन प्लेजेस ऑफ अकाबा ही नहीं लिखा है, बिकॉज दिस इज द कोर रीजन फॉर प्रॉफिट्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। इन्विटेशन की डेवलपमेंट लिखनी है और देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन। गेटिंग इट? यहां तक समझ आया? आफ्टर दिस, ये तो आपका एक पूरा डिटेल्ड पैराग्राफ होगा। व्हाट डू यू थिंक आर द अदर रीजंस अदर देन दैट बिहाइंड प्रॉफिट्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना? अब हम इमीडिएट रीजंस की तरफ आ रहे हैं। आपको कल मैं लास्ट टाइम जो प्लेजेस ऑफ अकाबा एक्सप्लेन किया, आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग, the pledges of Aqaba led to something which led to the migration. What could be other reasons, by the way? सर वो जो दारुन नदवा में मीटिंग की थी। Excellent, good. Meeting in Darun Nadwa. What do we call it? Plot to kill Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, you will write the detail. What were the 3 suggestions by the people in Darun Nadwa? उन्होंने कोई 3 suggestions दिए थे Prophet के साथ। एक था कि हर ट्राइब में से एक बंदा आएगा ताकि अगर यूनाइट हो जाए बनु हाशिम, फिर अपना रिवेंज। Okay, good. You are telling another point. Yes. What you were saying? Sir, it was either to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam and or either to kick him out of. Great. There was one more. Achha, sorry, the one who is giving the point, can you tell me your name because I'm not seeing the screen right now? Who gave the points? Can you tell me the name? Musa? मैंने एक दिया था, वो पहले वाला। अच्छा। अभी एंड पे जो पॉइंट दिया दारुन नदवा का, who gave it? I just want to know the names as well. सर वो मैंने दिया। अच्छा, ठीक है, that's what I was asking. Okay, अच्छा, मूसा आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और लेकिन मैं यहाँ पे साथ में एक और पॉइंट यहाँ से जो आया वो भी मैं साथ ऐड कर दूं अयान का। मूसा आपने जो पॉइंट दिया वो फाइनल डिसीजन था, उससे पहले देखें दारुन नदवा में लोग इकट्ठे हुए, they said we have to deal with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There were 3 suggestions there. कुरान में अल्लाह ताला ने पूरा वाकया मेंशन किया हुआ है, युक़तिलूनका, सॉरी वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना, वो पूरी वर्स है कुरान के अंदर। They had 3 plans, either to exile Holy Prophet or to arrest, lifetime imprisonment. Third option was to kill. पहली 2 क्यों रिजेक्ट हो गई वो भी पता होना चाहिए। एक्साइल करेंगे तो क्या होगा? People will, Holy Prophet will start preaching Islam outside, और वो इस्लाम एक्सेप्ट तो करेंगे लोग और अटैक हो जाएगा। One, they did not decide to put Holy Prophet in the prison for lifetime, क्योंकि वहां पे भी preach करेंगे। Third option was to kill Holy Prophet, उस पे ऑब्जेक्शन किया था, the tribe will take revenge. तो then जो मूसा ने पॉइंट वहां से किया वो फाइनल डिसीजन था। They said okay, उसका हल ये, और उसमें भी डिटेल है। शैतान was there in the meeting in the Darun Nadwa actually, where the meeting council hall में, in human form. शैतान can disguise as human form, he can assume the form of human. This happened in Battle of Badr and this happened in this event, so he was there. Exactly. तो अब उसने क्या किया, शैतान asked these people के don't worry about that one, और उसके लिए सजेशन है, वो सजेशन आपके सामने है कि हर ट्राइब से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साइमल्टेनियसली अटैक करेगा, and there will be no one, Banu Hashim will not be able to take the revenge. You got that one? This is the plan, but don't go in that detail too much. Plot किया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? They sieged the house of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? Did Prophet left Makkah just due to that, or there was one more important reason Prophet sallallahu alaihi wasallam left his house to Medina? Other than that, एक बड़ा key reason है,
कैम्ब्रिज कहता है उस रीजन के बगैर अगेन हाईएस्ट लेवल नहीं मिलता। वो कौन सा रीजन है इस इवेंट में जिसके बगैर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। नहीं, वो तो टास्क असाइन टू हजरत अली, गुड, वो हमारे अगले क्वेश्चन में हमें चाहिए। Sir, divine order. सॉरी अगेन, Divine order. डिवाइन ऑर्डर, एक्सीलेंट, गुड, परमिशन फ्रॉम अल्लाह, तो दैट इज देयर कैम्ब्रिज। अच्छा, मैंने कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। डेथ ऑफ मुतिम बिन अदी भी एक रीजन है, जो ट्राइबल प्रोटेक्टर था उसकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद सीज ऑफ हाउस हमने डिस्कस कर लिया, प्लॉट हो गया, और डिवाइन ऑर्डर, मैंने यहाँ परमिशन ऑफ अल्लाह लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेट थिंग। डिवाइन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आंसर है। अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर आता है, लेकिन टीचर्स कई दफा ट्रिकी क्वेश्चन देने के लिए आपको ये क्वेश्चन देते हैं। तो अगर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आएगा, कवर इट बट रीड द क्वेश्चन वर्डिंग। इमेजिन को कैम्ब्रिज वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है आफ्टर सोशल बायकॉट, अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू टॉक अबाउट इवेंट्स आफ्टर दैट वन। अब इसके मिलता हुआ क्वेश्चन मेरे पास अभी यहाँ ओपन नहीं हुआ है, मुझे जबानी याद है। अबू तालिब डाइड इन 619 AD, ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है। Write an account of the events which led to the migration to Medina after that. Abu Talib died in 619 AD, means that is year of grief. So the details before year of grief is not the requirement of the question there. Understand? यहाँ ये open ended question, like they have not restricted it. अब question पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपको इस चीज की भी फर्दर प्रैक्टिस करवाऊंगा। कई दफा ऐसा होता है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हम नॉर्मली डिपेंडेंट होते हैं टीचर के नोट्स के ऊपर और एक मॉडल आंसर के ऊपर। जब कैम्ब्रिज की पेपर चेकिंग होती है, कैम्ब्रिज एग्जामिनर ये नहीं देखता कि ये सर फलां के नोट से आंसर है या फलां के नोट से फलां के, दे यूज्ड टू सी डिड द स्टूडेंट एड्रेस द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और नॉट। मैंने आपको उसका एक सिचुएशन दिखाया था कि ओपन प्रीचिंग एंड देन परसिक्यूशन ऑपोजिशन। तो बच्चों ने तो टीचर के नोट से रट्टा लगाया होगा, कोई भी नोट्स हो, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली किसी टीचर के। वी वांट यू टू बी ट्रेन्ड के रट्टे पे 100% रिलाई नहीं करना। गो फॉर दैट। 80% पेपर रटा वाला ही होता है, 60% से 80% आप कह लें कि आपने जो क्वेश्चन 10 और 4 के किए मोस्टली उससे मिलते हुए आते हैं, बट दिस कीवर्ड चेंज इज जज देयर। मैं आपको कई क्वेश्चंस में ये चीज दिखाऊंगा, और इसीलिए कई बच्चे ए से ऊपर नहीं जा रहे होते, हालांकि दे आर आउटस्टैंडिंग इन एकेडमीज इन स्कूल, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमने टेस्ट पेपर बनाया है, तो यू आर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेरे पास कई बच्चे पिछले सेशन के एंड पे आए कि सर हमारे तो स्कूल में वी वर गेटिंग A स्टार, द टीचर वाज काउंटिंग एज अ डिस्टिंक्टिव स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली कुछ ने किसी का A चला गया, किसी के B पे भी चले गए, क्यों? अच्छा, उलट था, जिसको हम नॉर्मली B कंसीडर कर रहे थे वो स्टूडेंट A और ऊपर भी चले गए, क्यों? दे यूज्ड टू यूज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। उस मोमेंट पे उन्होंने उस क्वेश्चन को समझा है, एंड दे रोट लेस बट दे रोट रेलेवेंट। तो कुछ को लगता है कि शायद कैम्ब्रिज की मार्किंग कहीं थोड़ी सी उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिस्टेक्स होती हैं, तो आप जब कहीं आपको जेन्युइन रीजन लगता है आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप टीचर को दिखाएंगे ना, टीचर आपको कहेगा यू डिड नॉट एड्रेस द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, या योर आंसर इज लैकिंग स्ट्रक्चरिंग। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, सर ये मेरा आंसर 10 आउट, पहले तो पूछते हैं इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, तो हम भी एज अ ह्यूमन एक रेंज होती है, मैं इसको नॉर्मली कहा 6 आउट, सर मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग 10, 6 क्यों है इसके अंदर, 7 क्यों है? When I used to tell them, तो कई बच्चों को ये चीज रियलाइज ही नहीं होती क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होता। मैं आपको कई क्वेश्चन जैसे दिखाऊंगा, तो ये मैंने इसलिए आपको बताया। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, अगर बगैर आप हिंट दिए हुए ये क्वेश्चन दें एंड यू आस्क द स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट, दे विल डू मिस्टेक इन। और कई बच्चों का जिस साल ये पेपर में क्वेश्चन आया था मिस्टेक था, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम डिड यू रीड द क्वेश्चन, जी सर रीड किया, बता क्या वर्डिंग थी ये नहीं पता, बट वी सॉ माइग्रेशन टू मदीना। डोंट लुक एट माइग्रेशन टू मदीना, इज इट फोकस्ड ऑन इवेंट्स, is it focused on the causes of the events, is it focusing on events leading up to? अब यहाँ पे causes वर्ड नहीं यूज किया हुआ, आपको events पे फोकस करना है। अगर आप खाली वर्ड कॉज देखें और इवेंट्स में डिफरेंस है, तो आपने उन इवेंट्स को रिलेट करना है जिसने होली प्रॉफिट को माइग्रेशन करने पे फोर्स किया। इसमें डेथ एक इवेंट है अंकल का और वाइफ का, सोशल बाइकॉट एक इवेंट है, माइग्रेशन टू अबिसिनिया एक इवेंट है, यू गॉट दैट वन। प्लेजेस ऑफ अक़बा इज एन इवेंट, so you need to discuss the events which led to the migration. Now we are coming to the key question of migration to Medina, और वो है ये वाला, which is easy. अब ये कैम्ब्रिज है ना अपने ECR एग्जामिनर सपोर्ट एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और उन्होंने 3 तरह के बच्चों के हमें आंसर्स दिए हैं। मैं भी वो भी कोशिश करता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स को देता हूँ और आपसे पूछता हूँ आप इसको चेक करें, ग्रेड करें, एंड देन टेल मी वेयर दिस आंसर स्टैंड्स एक्चुअली इन द आंसर। आप रैंकिंग करते हैं, फिर मैं आपको कैम्ब्रिज का पॉइंट दिखाता हूँ कैम्ब्रिज ने इसके ऊपर क्या कहा है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने बिगिन कहाँ से करना है। फर्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, मैंने तो आंसर थोड़ा सा दिखा दिया है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना।
I have checked many answers of such type of questions as well. और एक स्टूडेंट का मैं आंसर चेक कर रहा था, दैट स्टूडेंट डिड अ वेरी हार्ड वर्क और उसमें परसिक्यूशन ऊपर वाली सारी कहानी लिखी हुई थी जो ऊपर मैंने आपको दिखाई थी। और जब वो पहुंचा यहाँ पे सीज ऑफ द हाउस, उसके पास टाइम खत्म हो गया होगा, इसको स्पेस भी लगा बहुत हो गई, ये 2.5 पेजेस हो चुके थे। अब नाउ द स्टूडेंट इज स्टार्टिंग द कोर पार्ट ऑफ द आंसर। दैट स्टूडेंट गॉट जस्ट 1 or 2 out of 10 in that answer। क्यों? The whole information which that student wrote was irrelevant. Relevant क्या है? Where you have to start your answer then? Sir, when he left his house. I will suggest yes. Sir, Hazrat Ali को छोड़ के। Okay. जब उनके bed में थे, Good. ठीक है। और वो छोड़ के थे उनको। instruction to Hazrat Ali. अच्छा. I will suggest, and even Cambridge suggests that the student should begin the answer from plot to kill. Siege of house. एक ही पैराग्राफ में ये सारा आएगा। Plot to kill, siege of house, and permission from Allah. दारुन नदवा वगैरह का सारा ये आपका एक पैराग्राफ है। When you move to the second paragraph, then you're going to move on further। आप जब second paragraph में जाएंगे, फिर आपका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्या हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहां पे आपका इंस्ट्रक्शंस टू हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। गॉट इट? उसके बाद क्या था? सबसे पहले सर वो उन्होंने अपने बिस्तर पे उन्हें मतलब लिटा के कहा था कि तुम कल मानते वापस। गुड, हजरत अली के इंस्ट्रक्शंस आपने बता दी। गुड, ठीक है। गुड, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में आता हूं। गुड पॉइंट, मैं इसलिए रिपीट करने लगा था क्योंकि आई वांट स्टूडेंट्स टू नो द स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको यहाँ पे आउटलाइन भी दिखाने लगा हूँ क्योंकि वी हैव पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बट वी जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज इट। यस सर, जो ईयर ऑफ ग्रीफ था, हाँ सर उसको ईयर ऑफ ग्रीफ इस वजह से कहा जाता है कि नबी की चचा और हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी, इस वजह से कि उस साल नबी में मुसीबतें ज्यादा आ गई थी। सर किस वजह से वो ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है? अच्छा, ईयर ऑफ ग्रीफ मनाया था या मुसीबतें? ईयर ऑफ, यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर ऑफ ग्रीफ क्यों कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रीफ एक्चुअली एट अ टाइम दो लोगों की डेथ, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोजेस्ट कंपेनियंस, फिर लॉस ऑफ मॉरल एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन। तो इस सेंस में कि ग्रीफ ओवर ग्रीफ्स, एक के बाद बैक टू बैक जो सॉरोस थे और एक सडन, तो ओवरऑल के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक तो 3 इयर्स तक सोशल बायकॉट, फिर सडनली लूजिंग द फैमिली मेंबर्स, उस वजह से इसको कहा। सर तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल गम मनाया था हजरत नहीं, गम मनाया नहीं जाता एक्चुअली, वो अलग चीज है। वो एक्चुअली जस्ट उस ईयर को इसलिए नाम दे दिया गया है कि प्रॉफिट फेस चैलेंजेस इन दैट ईयर। वो मनाना उस सेंस में नहीं है, वो इज जस्ट नेम्ड विद दैट कि उस साल प्रॉफिट के ऊपर बैक टू बैक चैलेंजेस आए। वरना तो देखा जाए तो प्रॉफिट का जो परसिक्यूशन ऑपोजिशन है, ही फेस लॉट ऑफ परसिक्यूशन ऑपोजिशन एंड ही आल्सो लॉस्ट हिज डॉटर्स इन हिज लाइफ। तो दैट इज जस्ट नेम्ड इट कि प्रॉफिट फेस्ड सो मेनी ग्रीफ्स इन दैट ईयर। तो पीपल नेम दैट के एक ईयर है जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईयर ऑफ ग्रीफ, या अरबिक में इसको आमुल हुज़न कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो भी हम डिस्कस करें। मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन, गुड पॉइंट, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछने लगा था। पहले तो सीधी सी बात हमने डिस्कस की, वी विल डिस्कस दैट वन। पहला था प्लॉट टू किल, सीज ऑफ द हाउस, परमिशन फ्रॉम अल्लाह। 3 चीजें हो गई। अब ये आपका पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ में आप 3 चीजें लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सेफ एग्जिट, who accompanied Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and where did Holy Prophet go। तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर आएगा। तो अयान was telling the point के Holy Prophet recited the verses of a Quran, which chapter? सूरह यासीन। हाईएस्ट लेवल ये है, आप वो रेफरेंस भी लिखें। और वो अयान was saying कि Prophet sallallahu alaihi wasallam गायब हो गए थे और लोगों को नजर नहीं आए, but you can say in that way, or you can say कि Prophet passed in front of these people but no one can notice that Prophet sallallahu alaihi wasallam सामने से गए। लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो बुक में ऐड हुई थी। यस इब्राहिम, गुड, मैं इस तरफ ही आने लगा था। अच्छा, जो मेरे हैंडआउट में भी ये चीज लिखी हुई है, तो दोनों चीजें मेरे हैंडआउट में ये ऐड करके दिया हुआ है कि प्रॉफिट टुक अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, थ्रू इट टुवर्ड्स द एनिमीज एंड ही रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ सूरह यासीन। वो कुरान की आयत है, वैसे भी पता होना चाहिए, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ। कई दफा आप कभी अल्लाह ना करे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, तो अगर आपको लाइफ का थ्रेट है या अनसिक्योर सिचुएशन है, स्कॉलर्स कहते हैं ऐसी सिचुएशन में आप वो वर्ड्स पढ़ सकते हैं। सूरह यासीन वैसे ही पढ़नी चाहिए, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा। मीनिंग ये है कि एनिमीज को और उनके बीच में बैरियर, लेकिन कोई क्राइम करके भागते हुए ना पड़ जाए कि एंड पुलिस पे मुझे ट्रेस ना करे या कोई। तो ये वैसे है कि अगर अल्लाह ना करे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम हाउ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। वैसे चारों को और दूसरी चीजें भी हैं, बट दिस इज हाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। ही लेफ्ट द हाउस सेफली and he
went to the house of Hazrat Abu Bakr and they both moved on. इसको थोड़ा सा आपने वैसे समझना है, लिखना नहीं है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले और मक्का शहर लीव करने लगे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी यहाँ पे तो मैप ज़ाहिर है अभी बनाऊंगा तो उतना समझ नहीं आएगा. मक्का की आप लोकेशन देखें, मक्का के नॉर्थ की तरफ मदीना है और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ एबिसिनिया का डायरेक्शन है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरफ नहीं गए. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स यमन, थोड़ा साउथ की तरफ नीचे मूव किया और वहीं पे केव में शेल्टर ले लिया. दैट इज केव ऑफ थॉर, गारे सवर, सौर, व्हाटएवर प्रोनाउंसिएशन, इट्स फाइन. एंड प्रॉफिट टुक शेल्टर देयर. प्रॉफिट नहीं, अब ये स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है. प्रॉफिट अगर रास्ते में मदीना वाले जाते, कुरैश का डाउट ज्यादा होता. प्रॉफिट अगर अबिसिनिया की तरफ जाते तो भी कुरैश सर्च कर लेते. तो स्ट्रेटेजी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और निकल के फौरन वहीं पे रुके. सर्च विल बी इन फार एरियाज, पीपल विल मूव अवे, कहीं गायब तो नहीं होगा, भाग तो नहीं का, आगे देखो निकल तो नहीं का. दे विल कीप सर्चिंग फॉर होली प्रॉफिट. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर टुक शेल्टर इन केव ऑफ थॉर. और आपके आंसर का 60% मार्क्स इस क्वेश्चन में इसी के ऊपर है. अगर आप केव ऑफ थॉर या गारे थॉर का स्टे जो है एक्सप्लेन नहीं करते डिटेल्स, आपके आंसर में 5 भी मुश्किल से आते हैं, क्योंकि दिस इज द कोर पार्ट ऑफ योर आंसर. अब व्हाट डिटेल्स कैम्ब्रिज एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग, 3 चीजें आपसे वो एक्सपेक्ट करता है. आपका रेफरेंस भी इधर आएगा. यस, सॉरी, मिरेकल्स आएंगे. एग्जैक्टली. सबसे पहले तो क्लीनिंग ऑफ केव, हजरत अबू बकर एंटरिंग इनसाइड. सर वो अपने गारमेंट साथ थे. हाँ, एक्चुअली उनका क्लॉथ टर्बन जो भी था वो रखते थे. ही टोर इट, फेल इट, and one hole was left. He put his leg on it and he was stung by the snake. स्नेक ने Yes. काटा था. Yes. Yes, then snake का stinging, then उसके बाद saliva, और उसके बाद अब Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, because you know when the next day, हमने चूंकि वो थोड़ा सा पॉइंट मिस आउट कर दिया, जब नेक्स्ट डे हजरत अली को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मैं डिड आई टेल यू हजरत अली को इंस्ट्रक्शंस मिस हो गए आई थिंक हमसे, आपने किसी ने पॉइंट बताया था, प्रॉफिट लीविंग हिज हाउस एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हजरत अली बिफोर लीविंग द हाउस. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नेक्स्ट डे जब बेड पे उन्होंने देखा तो देवर, अच्छा व्हाई डिड हजरत अली वाज स्टॉप टू हैंड ओवर द पोजेशन. गुड. और ये आपने लिखना, अगर सपोज आप इतना लिखते हैं ना कि हजरत अली वाज लाइक आस्क्ड टू ले ऑन द बेड ऑफ होली प्रॉफिट, बात अभी पूरी नहीं हुई है. एंड प्रॉफिट आल्सो असाइन हिम to yes to hand over the possessions of the people. और फिर आगे आपने लिखना है जब नेक्स्ट डे प्रॉफिट तो केव ऑफ थॉर में आ गए, कुरैश ने क्या अवार्ड अनाउंस किया फॉर वन हु विल टेक 100 रेड कैमल्स. लिखें तो और अच्छी बात है, बट 100 camels is also fine. Now look at a brief outline for this question. The question is there in front of you. Describe the main events of Prophet's journey from Makkah to Medina. Very easy question है अगर आपके पास outline है. सबसे पहले plot to kill, reference, ठीक है. उसके बाद siege of the house of Holy Prophet, you will develop that one. Permission from Allah is already there in that passage. So the first paragraph is covering all the 3 points. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam hand task for Hazrat Ali. Then the way he left, you can see I talked about dust discussion as well, and then reciting verses of Surah Yasin. मैंने reference भी दिया हुआ है, number जरूरी नहीं है, ratio अगर आपको नहीं आता doesn't matter, answer is fine with it. He left Makkah with Abu Bakr and stayed in the cave of Thor. Announcement of 100 red camels. I tried to make the answer like comprehensive, बहुत ज्यादा extensive भी detail ना हो कि आपके लिए manage करना मुश्किल हो जाए. इस part को आप थोड़ा सा stretch कर सकते हैं if you want. But when I used to make an answer, I used to see a very high level answer, distinctive student भी और एक student जो struggling होता है. तो मैं जब answer को structure करता हूँ तो मेरे नजदीक वो दोनों student सामने होते हैं. क्योंकि ज़ाहिर है जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है वो तो वैसे ही आंसर बिल्डअप कर लेता है, उसको हल्का सा भी क्लू मिले. तो समवन हु वांट्स टू गेट डिस्टिंक्शन और समवन वांट्स टू गो विद लाइक टू बी ऑन द 100% सेफेस्ट साइड, तो आप कुछ चीजें इसमें ऐड अप कर सकते हैं. बट दैट आंसर इज काउंटेड एज आइडियल आंसर और समटाइम्स कैम्ब्रिज लाइक्स आइडियल आंसर. यस सर, हमने इसे मतलब वो रूट का लिखना है कि जिसके थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माइग्रेशन की थी, कि किधर रुके थे, जिधर रुके थे. दैट इज यू टॉकिंग अबाउट केव ऑफ थॉर. नो सर, वो बाकी जगहों पे भी रुके थे ना. अच्छा, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट, यस. अच्छा, अब जो हमारा आंसर है ना, ये देखें, ये बिगेस्ट पैराग्राफ है. तो दिस पैराग्राफ इज कवरिंग द होल डिटेल ऑफ द केव एंड आई हैव मेंशन्ड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स. अब यहाँ पे हजरत अबू बकर का रोल तो हमने यहाँ तक मेंशन कर दिया. यस, तो उसके जो बच्चे थे उनका रोल, जैसे उनकी जो बेटी थी, यस, खान आती जो नाम गुड. हजरत अबू बकर फैमिलीज रोल, बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबू बकर और बेटी
आसमा हजरत बिनते अस्मा। अबू बकर। दोनों का रोल मेंशन करेंगे, हजरत अबू बकर के स्लेव का भी रोल है, मिरेकल्स आपने मेंशन किए, सारे यहाँ पे आएंगे, और रेफरेंस भी कुरान का है। ये पैराग्राफ आपके आंसर में एग्जामिनर ढूंढेगा, एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसको स्प्लिट कर दें टू 2 पैराग्राफ्स, ताकि आपकी स्ट्रक्चरिंग आंसर की आसान हो जाए। बट इट इज फाइन, ये इस सिचुएशन में बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई पैराग्राफ बहुत छोटा और कोई बहुत बड़ा है तो इट्स गिविंग नॉट गिविंग अ गुड इंप्रेशन, इट्स फाइन। इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे, लेकिन एग्जामिनर इस चीज को ऑब्जर्व करता है, तो इट्स बेटर टू स्ट्रक्चर पैराग्राफ कि वो एक इक्विवेलेंट उसमें चल रहे हो। इफ यू थिंक दिस पैराग्राफ इज गोइंग टू बी वेरी बिग, you can split it and you can develop it for a search for holy prophet. I was telling you actually, जो cave है ना, अगर आप ये देखें कि क्लास का जो कैबिनेट है थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ, जैसे आप खड़े हो तो आपके पाँव के लेवल के ऊपर केव का रेट होगा। इफ समवन हैव टू सी कि समवन इनसाइड द केव, उसको झुकना होगा और फिर वो अंदर देखेगा और उसको कोई नजर आया तो दैट पर्सन विल से कि समवन इज देयर, एंड अल्लाह प्रोटेक्टेड कि वो जगह वैसे ही बाय द मिरेकल हाइड हुई। एग्जैक्टली, वो मैंने रेफरेंस दिया हुआ और उसकी डेवलपमेंट मैंने यही बताई, क्योंकि अबू बकर सेड कि वी कैन सी द लेग्स ऑफ द पीपल, वी कैन हियर द फुटस्टेप्स, वी कैन लिसन टू देयर डायलॉग्स, but these people did not bend down. Why? Because of the miracle which Allah showed. इसमें स्पाइडर वेब आप मेंशन करेंगे, पिजन नेस्ट आएगा, कुछ बुक्स में इवन की जो ट्री के बुशेस थे ना, हर्ब्स थे, वो ब्रांचेस ऐसे आपस में क्लोज हो गई थी कि द एनिमीज डिड नॉट हैव अ फीलिंग कि इसके अंदर केव में कोई गया भी होगा। तो अल्लाह प्रोटेक्टेड होली प्रॉफिट and his companions there by a miracle which you are going to connect in that answer. तो ये भी आपके आंसर के अंदर जरूरी है। यहाँ तक समझ आ गया? अब अभी बात खत्म नहीं हुई, ये आपकी जर्नी का 70% फेज है। आगे इसके बाद अब प्रॉफिट की जर्नी में थोड़ा सा आउटलाइन बता दूं, वो है केव ऑफ सौर से कुबा तक की। अब आपका अगला पैराग्राफ उसके ऊपर होगा। यस, इन कुबा तक का भी हम पहले देखते हैं, वो कुबा में एग्जैक्टली। अच्छा, अब केव ऑफ सौर से और कुबा के बीच में एक आदमी से मुलाकात हुई, वो कौन था? अभी तक ना इनाम की लालच में था, सर्च चल रही थी। हजरत अली नहीं, हजरत अली तो थे एक। सर, सुराका बिन मालिक। सुराका। ग्रेट। अच्छा, अब इसमें ना ये जो सुराका वाला केस है, इसकी डेवलपमेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, मैं आपको साथ ही बता दूं। सर, वो कोई प्रेडिक्शन भी की थी ना नबी एग्जैक्टली। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, कुछ बुक्स में और भी डिटेल है, लेकिन अगर हम सिंपली बात करें तो थोड़ा शॉर्ट रखें इसको। मैंने तो 2 लाइनों में लिखा हुआ है, बट आई विल अप्रिशिएट कि आप थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करते हैं। सुराका बिन मालिक, देखें लोगों ने सर्च खत्म, और मैं आपको दिस इज आउट ऑफ दिस आंसर वर्डिंग, आप अलग से समझा रहा हूँ। प्रॉफिट और हजरत अबू बकर जब डेजर्ट में सफर कर रहे थे ना, हजरत अबू बकर आगे बैठे हुए थे और हजरत प्रॉफिट पीछे की तरफ थे। कोई भी अगर रास्ते में रोकता था सर्च करते हुए, दे हैव कवर्ड देयर फेस। जब आप सहरा में डेजर्ट में राइड करते हैं तो मुंह आपने छुपाया हुआ होता है। Everyone who used to check who are they used to ask the Hazrat Abu Bakr who was in the front. Actually, they had the third person who was their slave, who was taking them from unknown routes actually. So whoever used to stop them, they used to ask about Holy Prophet who is sitting at the back. Because Abu Bakr used to say, he is my guide and he is guiding me toward the right path. So that is not the wrong answer as well. So should भी नहीं है. So that person used to say, okay, ये इनका guide होगा and all of these things. But Suraka bin Malik, he is the one who recognized Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And therefore he was on a horse and he tried to attack on Holy Prophet. Every time he tried to attack, his horse, which books may stuck in the desert sand, and he used to fall down. And when he used to fall down, he is in danger. Exactly. Third time, हर दफा ऐसा हुआ, हर दफा प्रॉफिट से सॉरी करता था। थर्ड टाइम he realized कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं हार्म नहीं कर सकता। Your wording is good, divine sign. अब उसमें डिटेल है, कुछ बुक्स में he requested Holy Prophet to give surety कि Holy Prophet will not harm him in future if Muslims will take over Makkah. क्योंकि इसको ये खतरा तो है ना कि कल को अगर मुसलमान मक्का आएंगे और मैं भाग के भी जाऊंगा तो मुझे उन्होंने पकड़ देना, इसको तो पकड़ो, ये रास्ते में भी तंग कर रहा था। तो he requested Holy Prophet, do not harm me. Prophet agreed on that. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है he requested Holy Prophet कि मेरे लिए दुआ करे कि वो पर्शियन किंग के उसको वो मिलेंगे jewels or something like that. अगर वो भी आपको लिखा हुआ मिलता है, you can write it, but that's not the requirement of the question. Question की requirement ये है, attempt of Suraka bin Malik to stop Holy Prophet and how Allah protected him. This is what we need here. Okay. Prophet reached Quba. 14 days का स्टे किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद शुरू हुई, और यहाँ पे एक पॉइंट आया था, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु
joined Holy Prophet there. Holy Prophet ने हजरत अली को आगे भेज दिया और Holy Prophet and हजरत अबू बकर moved on. हजरत अली मदीना की तरफ चले गए थे, फिर बाद में हजरत Holy Prophet और हजरत अबू बकर move on हुए and they stopped at a place in between. It's called Valley of Banu. मैंने यहाँ बनु सलीम लिखा हुआ है SALIM, but I have found in Arabic books it's written as Sulaim. So if you find Banu Sulaim or Salim, doesn't matter, right? So सर ये Banu वैली Salim- है या क्वार्टर वैली है, yes, Valley of Banu Salim, quarters of Banu Salim. ओके सर सालिम हुआ, वही बात होगी, ठीक है। इसको असल में अरबिक वर्ड है ना, प्रोनाउंसिएशन अगर आप करते हैं तो सुलैम वर्ड बनता है, लेकिन सालिम भी ठीक। जैसे बहेरा वर्ड हम पढ़ते हैं ना क्रिश्चियन मॉन्क, एक्चुअल वर्ड बुहेरा है। तो आप अगर किसी ऐसे टीचर की बुक पढ़ेंगे जो अरबिक लैंग्वेज से फैमिलियर होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे अब इस्नद वर्ड है, एक्चुअल वर्ड इस्नाद है हदीस के अंदर, लेकिन हम नॉर्मली इस्नद बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश स्टाइल में लिखा हुआ है ISNAD, तो हम उसको इस्नद। लाइक आई वाज आस्किंग वन ऑफ द स्टूडेंट, औस और खजरज में लिखवा रहा था, दैट स्टूडेंट से खजराज, आई सेड व्हाई खजराज, शी सेड देयर इज डबल ए रिटन देयर। आई सेड ओके फाइन, इंग्लिश स्पेलिंग में आप जैसे भी प्रोनाउंस करें तो इट्स फाइन है, इट्स नॉट ओके। तो बनु सलीम या वैली ऑफ बनु सलीम, क्वार्टर्स ऑफ बनु सलीम, इट्स ऑल सेम थिंग। फर्स्ट जुम्मा प्रेयर वाज परफॉर्म्ड। मैंने बीच में एक और भी मिरेकल प्रॉफिट का ऐड किया हुआ जो आपको बुक में मिलेगा। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stopped at a place, there was a goat जो मिल्क नहीं करती थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल, yes exactly, so many people came, they took, so that is, if you want you can add it। अगर इसके बगैर भी आंसर आपने लिख दिया, it will be fine and complete। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reached Medina and he was warmly welcomed there। ये नीचे जितना मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, this is not the requirement of the question, understand? ये मैंने थोड़ा ऐड कर दिया था क्योंकि एक दफा एक स्कूल में टीचर ने मक्की और मदनी लाइफ कंबाइन करके क्वेश्चन दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन कैम्ब्रिज में आया है तो एक दफा है, वो क्वेश्चन ये है, राइट एन अकाउंट ऑफ इवेंट ऑफ माइग्रेशन एंड प्रॉफिट्स वार्म वेलकम इन मदीना। तो द डिटेल्स ऑफ वार्म वेलकम इज हियर। और मैंने थोड़ा सा और हाई कर दिया, मैंने वो जो बच्चों ने वेलकमिंग जो पोम पढ़ी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कल अल बद्रु अलैना मिन सनायातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा, ये अरबिक में इसकी ट्रांसलेशन है। द फुल मून शाइन्स डाउन अपॉन अस फ्रॉम सनायातिल वदा इज द नेम ऑफ द माउंटेन जहां से प्रॉफिट एंटर हुए थे, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, जस्ट वार्म वेलकम। यहाँ पे एक और वाकया भी था, एक सहाबी हैं, मुसलमान हो गए थे, पहले वो यहूदी थे, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम। He is the first person who saw Holy Prophet coming from far। क्योंकि आप दूर से देखते हैं डेजर्ट में तो पहले डस्ट नजर आती है, फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा सा शेड नजर आना शुरू होता है। When he saw Holy Prophet and Hazrat Abu Bakr, he realized कि Hazrat Holy Prophet को देखते ही कि ये prophet हैं, and he accepted Islam and his name was अब्दुल्ला बिन सलाम। अब अगर चाहे तो कस्वा प्रॉफिट की कैमल की भी डिटेल, यस सर जूस ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया था ना। Abu Ayyub Ansari। अच्छा, someone is from online is asking question, can you repeat your question? Sorry सर मैं कह रहा हूँ ये वेलकम में हम जूस का जिक्र कर सकते हैं, उन्होंने भी क्योंकि वेलकम किया था। हाँ, yes you can say कि they were also waiting कि prophet is going to be there, of course they knew कि praise the prophet। तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे, prophet's arrival in Medina and first year of Hijra and all of these things। yes हाँ, वो मैं ये बात दिखा रहा हूँ, ये everyone was trying to grab वो ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में स्टे किया। अब बाकी मस्जिद वगैरह ये भी मैंने लिखा है नीचे, सहल और सुहेल दो भाइयों की। तो इफ यू वांट टू गो इन डिटेल, बट दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन लाइफ इन मदीना। तो आई डोंट वांट यू कि आपको थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन हो। जब हम लाइफ इन मदीना डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमारे डिस्कशन के अंदर आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's लाइफ इन मक्का। एंड आई टोल्ड यू, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है एंड पे 2023 के क्वेश्चंस है। मैंने कोशिश की है 2024 और 2025 के क्वेश्चंस में यहीं पे दिखा भी रहा हूँ। एंड इफ समवन इज नीडिंग 2024 2025 पेपर मई जून तक का, अक्टूबर नवंबर का मैंने आपको दिखा दिया, बट आई माइट बी नॉट फॉरवर्डिंग इट क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, आप फॉरवर्ड उसको नहीं करते अंटिल कैम्ब्रिज उसको डिस्पैच ना कर दे जनवरी में जाके। तो वो हम नॉट्स के अलावा बाकी पेपर आपको कोई भी चाहिए आई विल शेयर विद यू। क्वेश्चन बैंक आपके सामने, आई पर्सनली ट्राइड कि मैं उसको टॉपिकल कर दूं, लेकिन इट्स फाइन, ये सारे मक्की लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट की क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। वी विल मूव टू अ स्मॉल टॉपिक टुडे। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू कवर इट और नॉट बिकॉज आई वांट कि हम टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करें। वी आर कवरिंग अनदर थिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 1। ठीक है, हमारे सिलेबस में इफ आई टॉक अबाउट कुरानिक पैसेजेस, कितने पैसेजेस हैं टोटल?
Quranic passages हमारे syllabus में 15 है, ठीक है? We have 15 passages in our syllabus. I'm sure you are familiar with that, right? 15 passages जो हैं वो 5 के portions में क्या हुए हैं? Split हुए हैं. Definitely they are talking about oneness of Allah, powers, attributes and all of these things. But the 15 passages, they are split into 3 main themes. What are they? Allah in himself, Allah's relation with created world and Allah's messenger. अब आपको जिस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है कमिंग ईयर्स में, वैसे आप शायद बच भी जाएं इस चीज से, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. हर क्वेश्चन 2 थीम बेस्ड था. ये है वैसे क्वेश्चन 1 की डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 पहले इसके ऊपर ही था. कैसे आ रहा था वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए. आई विल आस्क यू कि आपने ये नहीं देखना कि आयतुल कुर्सी एंड ऑल ऑफ दीस थिंग. यू शुड नो आयतुल कुर्सी का नंबर क्या है, सूरह अल-अनाम का सूरह नंबर वर्स नंबर क्या है, सूरह फुस्सिलत का सूरह नंबर वर्स नंबर. दैट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल नाउ. 2 जगह हेल्प करता है, क्वेश्चन 1 में भी हेल्प करता है और क्वेश्चन 2 में. क्वेश्चन 2 जिसे हम थीम बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुकी है चीज जो है. तो वी विल टॉक अबाउट इट इन क्वेश्चन 2. 1 में you need to know which 5 passages are Allah in himself, which 5 passages are Allah in his relation with created world, and which 5 passages are related to Allah's messengers. ये ऐसे इतना आराम से याद नहीं होता. That needs a lot of practice. ट्रांसलेशन गिवन होगी वो तो आप डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे सेम थीम्स हैं वहां पे आपको थोड़ा नाम डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है. आप आयतुल कुर्सी देखते ही बता देंगे, आई कैन से दैट. सूरह इखलास आप देखते ही बता देंगे, आप सूरह फातिहा देखते ही बता देंगे, दैट इज सूरह फातिहा. आप सूरह अलक देख के बता सकते हैं, सूरह ज़िलज़ाल बता सकते हैं, सूरह नास बता सकते हैं. बट यू माइट स्ट्रगल कि सूरह बकरा के अंदर कौन सी वर्सेस की बात हो रही है, सूरह अल-अनाम है, सूरह अल-माइदा भी आप बता देंगे दिस इज अबाउट दैट एंड दिस एंड दैट. सूरह दुहा आप समझ जाएंगे, सूरह कौसर भी समझ जाएंगे. जो रिमेनिंग है आपको, अगर मैं कोशिश करूंगा कमिंग क्लासेस में एक प्रॉम्प्ट कुरानिक पैसेजेस दूंगा और आपसे पूछूंगा आप ये बताएं कौन सी सूरह, तो इससे आपकी ग्रेजुअली प्रैक्टिस होगी. माय टारगेट वाज टू टॉक अबाउट पार्ट ए और बी में क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है, कैसे लिखना होता है. बट आई विल कम टू दैट टॉपिक टुमारो, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट भी करूंगा 2 मिनट 3 मिनट में वो फिर नहीं होगा. कल की क्लास में पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर आई विल मूव टू मदनी लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, ताकि ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाए.